would you want to share कि आपको बिजनेस में कैसे रोड ब्लॉक्स आए और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? मैंने उसको खिला पिला के, मैंने ऐसे टाइम पे मैं बाहर जाती थी तब बच्चा सो रहा है. दिस इज आई एम टेलिंग यू व्हेन शी वाज जस्ट अ किड, जब छोटा बच्चा. तो मेक श्योर चाहे आप 1 रुपया कमाओ, 10,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, पर मेक श्योर टू कीप योरसेल्फ, टेक अ स्टैंड. Hello everyone and welcome back to another episode of She the Boss. And today I have with me Simran और हम कोशिश करते हैं इन सीरीज में ऐसी स्टोरीज को हाईलाइट करने के लिए जो काफी अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में. दे आर मैरिड एंड दे आर ऑल्सो मे बी अ मदर एंड साथ ही साथ अपने करियर में भी ब्लूम कर रहे हैं. ऐसी स्टोरीज सुन के हमें बहुत इंस्पायरिंग फील होता है और हम ये कोशिश करते हैं कि आप उस स्टोरीज से कुछ सीखो, कुछ जानो और अपने लिए यूज करो. सो वेलकम टू द शो सिमरन. थैंक यू सो मच. Yeah. All right. So, yes, thank you so much for doing this. Yeah. I mean, this was pending for a long time, you know. Finally. Yes, finally, here we are. तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज योर बैकग्राउंड, हाउ डिड यू स्टार्ट और आप फिटनेस कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे आए? So basically, हुआ इस तरह से था. When I became a mom, I got married early, and then I became a mom. And after mom, like, you know, postpartum, I gained a lot of weight. As simple as, like, a simple story. It started, and I was an interior designer. Like, initially my career was as an interior designer as I was working. So postpartum, I gained so much of weight, but that time I did not really realize much. You know, I mean, life was going on, चल रहा था अपना, कोई दिक्कत नहीं. But suddenly one day in an event I went, it was a Rakhi event. I just remember that day so clearly. I just can't explain in words that somebody much elder to me called me auntie. कि auntie आप ये वाला राखी ले लीजिए. And when she called me auntie, no, I just stood there and I was like in surprise, on a shock state, in fact, rather I would say. मुझे लगा यार मैं आंटी बन गई इतनी जल्दी. And that night I came back home. I just stood in front of the mirror, looked at myself top to bottom, that what actually happened. And then I realized, yes, there's nothing wrong that lady said me auntie. And that word like pinched me. It changed my life. I mean, you know, when you're at a very young age and somebody just called you auntie, you understand how it feels. Right. So, right. Yeah, right. That is the main reason I got into fitness, and I thought ki I really need to not look like auntie and really need to look like what my age is at least. And then I wanted to, you know, I started asking help in how to do that. And the first thing that comes in mind is gym join kar lete hain. And that's what I did. I joined a gym, but then I had no guidance over there. Okay, people randomly were saying, somebody was saying run on the treadmill, somebody saying lift weight, do this, do that, eat this, eat that. People were giving random suggestions. Okay. And won't lie, being a woman, I was little skeptical to talk to any male trainer and, you know, speak openly, you know, कि मेरा hip वाला part ज़्यादा fat है या मेरा पेट में ऐसा fat है. You are showing your body parts, right? So that's how my journey started, where I realized that there is a lot of lack of women's, and, you know, women's health and anatomy is totally different. हमारा body totally अलग होता है as compared to males. And that is how I started in fitness. बिल्कुल बिल्कुल. एंड थैंक यू सो मच, आपने अपनी स्टोरी इतनी खुल के शेयर की. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ये जरूर होता है जैसे आपने बोला, यू नो, स्पेशली आफ्टर मैरिज एक लेबल हो जाता है कि अब आप शादी हो गई है तो शायद जितने भी, यू नो, कॉलोनी के बच्चे होंगे, आसपास के लोग होंगे, आंटी सुनने को इजीली मिलता है. तो ये बिल्कुल होता है. आई कैन रिलेट टू इट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. जो आपने स्टोरी शेयर की, ऑफ कोर्स कंप्लीटली मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शादी के बाद इमीडिएटली जो होता है वो जरूर सुनने को मिलता है. एंड आई थिंक यू टुक इट अप वेरी पॉजिटिवली एंड यू वांटेड टू चेंज इट. बहुत लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं अच्छा हो गया तो उसी में, यू नो, दुखी हो जाते हैं. दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स कि अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. बट यू ट्राई टू लुक फॉर अ सोल्यूशन एंड यू ट्राई टू लुक फॉर अ सोल्यूशन पॉजिटिवली. और मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, यू नो, यू मेंशन दैट यू बिकेम अ मॉम, यू वर आल्सो मैरिड, एंड देन आपने ये बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोचा. तो हाउ आर यू बैलेंसिंग ऑल ऑफ दिस? मतलब frankly speaking, from initial day one, I became an interior designer after my marriage. Like, when I got married, I got to know my husband has this kind of business, and he pushed me, you know, you become the, you know, designer and you do things, you take it in your hands and do. So we started doing business. I never did job in my life. But so when I was pregnant, I started learning, becoming an interior designer, and after that I did business with my husband.
but the challenges that I faced, as a wife, as a mother, I mean, you have a kid in your hand. I mean, you can't give your kid to somebody ki acha dhyan rakh lo, because the kid is very young and you have to take care, feed karna hai, doodh pilana hai bacche ko, and dhyan rakhna hai. You know how it happens. But at the same time, you have to manage your business, okay? And sometimes, be your husband, if he's also a partner, even he at times like, okay, ye kaam diya tha, what happened? You did not do it. You did not finish it in the deadline, So business manage करना is a challenge till today. मेरी बेटी आज 14 साल की हो गई, इस साल 15 साल की हो जाएगी. पर आज भी मुझे लगता है when you are a woman and you are a mom, managing business or managing whatever you wish to do in your life, like as in career oriented आप अगर कुछ करोगे, उसको manage करना आपको हमेशा ही tough रहेगा. पर उस tough situation में भी how you give yourself that priority, set things up, कि ये टाइम है मेरा दिन का, कि ये टाइम मेरे काम के लिए है. यू हैव टू डू दैट, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, वन और दी अदर, कभी ना कभी ये मोमेंट जरूर आएगा. और इनफैक्ट रोज आता है कि आपको लगेगा कि यार छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं. ये वो गिव अप वाली फीलिंग आती है क्योंकि आपके पास इतना सारा चीज करने को होता है. एंड व्हेन अ मदर इज डूइंग समथिंग, वो आ ही जाता है, यार बच्चों को कौन देखेगा, घर का ध्यान कौन रखेगा, भले कितने ही नौकर चाकर हो. So that management skills will be on till the last day of your life if you want to manage your like your family and your work, but you have to keep doing it, keep pushing yourself. Absolutely, absolutely. और मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, I am not a mother yet, but मैं ये जरूर सीखना चाहूंगी and I would want to learn from you कि starting में जैसे when you started, you had a child और आप साथ साथ business भी कर रहे थे, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे steps हैं जो आपने लिए to make sure कि दोनों चीजें बैलेंस आउट होके चल सके, और अगर challenges आए तो उन challenges से cope up करने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहला तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं खुद बहुत छोटी थी, आई वाज जस्ट 19-20 की थी, तो मैं खुद बहुत छोटी थी, तो मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं कैसे बच्चों को पालते हैं. इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर मी, इट वाज रियली डिफिकल्ट, बट स्टिल व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक, मेरी बेटी जब सोती थी, आई यूज्ड टू डू द वर्क पार्ट. देन जब बाहर जाना होता था, आई टू मेक श्योर कि मैंने उसको खिला पिला के, मैंने ऐसे टाइम पे मैं बाहर जाती थी तब बच्चा सो रहा है. दिस इज आई एम टेलिंग यू व्हेन शी वाज जस्ट अ किड, जब छोटा बच्चा, बिकॉज उसका सोने का टाइम एंड ऑल एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. सो यू हैव टू मैनेज योर वर्क अकॉर्डिंग टू द स्लीपिंग साइकिल ऑफ द बेबी, ओके, फॉर द इन्फेंट, लाइक वो जब छोटी रहेगी या छोटा रहेगा. एंड majorly you have to be very good at time management, like manage करना, अपने डे को प्लान करना. you can't be randomly कि ठीक है चलो, but you have to have a plan. रात को प्लान हो जाना चाहिए कि आज मैं नेक्स्ट डे में कैसे करूंगी, मेरी बेटी का ऐसा ऐसा टाइमिंग है, ऐसा ऐसा है, उसके खाना पीना, खुद का खाना पीना, तभी you have to plan your day, plan your routine कि ऐसा ऐसा है, ये मेरा मीटिंग्स है, इस तरह से. नाउ यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जिस वक्त आप निकल रहे हो आपका बच्चा उस वक्त सो रहा है, एंड ऑब्वियसली कोई घर पे हो हु कैन टेक केयर. अगर बाय चांस उठ भी गया तो आई मीन somebody to take care of the kid in your absence. Absolutely. और ये सब मैनेज करते करते, जैसे आपने बोला, बहुत बार ऐसा लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, मतलब आज ऐसा लगता है कि आज के बाद नहीं करना है. तो ऐसी सिचुएशंस में हाउ डिड यू ब्रिंग बैक द पॉजिटिविटी, हाउ डिड यू फील कि नो करना है, आई हैव टू कीप गोइंग? Well, I believe in one thing, that is like, see, I mean, two people, they speak one thing very much कि हम अलग है. ये बात आपको काफी सुनने को मिलेगा कि मैं तो अलग हूँ दूसरों से, बट अलग बोलने से नहीं होता है. until unless you do things अलग, until unless you perform those actions differently, you won't be अलग. So I always wanted to be different, and that's the reason whatever challenges came in my life, I always tried. I mean, life will always throw challenges in different ways, and different कुछ नया challenges आते रहेंगे. पर all the time, I mean, एक होता है कि आप mentally खुद को motivation करने के लिए I write affirmations, I listen to affirmations, I try always to give a superior hand to my mental health, जहाँ पे मैं थोड़ी सी meditation करती हूँ खुद को calm रखने के लिए. हाँ, these all things I do, and all the time I make sure I remind myself कि Simran, you are just not for doing just normal daily things, not lead an average life, but do something. तो वो something extra मुझे करना है, तो उसके लिए तो I mean I need to put in that extra efforts. बिल्कुल. And I think
अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़े थॉट्स को क्लियर करना, जैसे आपने बोला मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे थॉट्स बनते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, उसको साथ साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि घर में अगर गंदगी हो रही है तो साफ करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो सिमिलरली दिमाग में भी अगर थॉट्स आते जा रहे हैं, अगर मैं बोलूं गंदगी भरती जा रही है, जब तक उसको साफ नहीं करेंगे स्पेस नहीं बनेगी नए थॉट्स के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए। राइट, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। आई थिंक मैं बहुत एक सेंसिटिव क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी, एंड इफ यू आर ओपन टू आंसर दिस, आई वुड वांट टू नो कि बहुत बार एज अ वुमेन हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, आवर हस्बैंड इज द बेस्ट पार्टनर दैट वी कैन गेट, वो काफी सपोर्टिव होते हैं। जैसे आपके केस में आपने बोला उन्होंने आपको पुश किया बिजनेस करने के लिए, ही टोल्ड यू टू स्टार्ट बिजनेस एंड यू नो बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर, एंड आई एम श्योर अभी भी वो आपको उतना ही सपोर्ट देते हैं। लेकिन बहुत बार सोसाइटी अलग ही नजरिए से देखती है, यू नो लड़की है, घर का ध्यान रखना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर बाहर जा भी रही है, काम कर भी रही है तो 7 बजे वापस आ जाए। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि अभी तो हम एक जॉब कर रहे थे कि घर का ध्यान रख रहे थे, फैमिली का ध्यान रख रहे थे, जब हम बाहर काम करने निकलते हैं, व्हेन वी ट्राई टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्व्स, हमारी 2 जॉब हो जाती हैं। कोई ये नहीं समझता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें भी उतना ही स्पेस चाहिए, उतना ही रेस्ट चाहिए, या उतना ही सपोर्ट चाहिए जितना कि एक मेल मेंबर को। हमारा काम हो जाता है कि घर का ध्यान जो कर रहे हो ठीक है चलता रहे साइड में, लेकिन ये भी होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साइड में हो रहा है, ये मेन नहीं है। हाँ, कोई उसको मेन फोकस में, मैं स्पेशली सोसाइटी के नजरिए से बात कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली जितनी मर्जी सपोर्टिव हो, बहुत बार जब सोसाइटी आपको तंग करती रहती है, आपके कान भरती रहती है, तो आपको खुद को और फैमिली को भी शायद थोड़ा बहुत गिल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी आपको ऐसा फील हुआ, और ऐसा हुआ हो तो आपने क्या किया? डेफिनेटली हुआ है, और मेरे केस में कुछ ज्यादा ही हुआ है, बिकॉज मेरा पैशन एक है बाइक राइड करना। मैं रेस भी की हूँ, तो मुझे हेवी बाइक्स का शौक है। प्लस यू नो आई हैव टैटूज आल्सो इन माय हैंड। आई नेवर लीड अ लाइफ व्हिच वाज लाइक नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल औरत का जैसा होता है वैसा नहीं। मैंने आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ फैमिली, बीइंग इन अ मारवाड़ी फैमिली, आई हैव स्टिल टुडे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ये भी घर में कभी कुछ होता है, पीपल दे से, बट whenever let's say घर पे अगर शादी ब्याह कुछ होता है, despite people are here, but if I have some work, if I know I have some commitments, I make sure I do that. See, one thing you have to understand, society के लोग, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे आप बुरा काम करो, आपको सुनना तो पड़ेगा। लोग आपको आपके बारे में बात तो जरूर करेंगे, और उस बातों से फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए। यू हैव, इफ यू गेट लाइक यू नो, अगर आप उससे इम्पैक्टेड हो जाते हो तब प्रॉब्लम है। इफ यू थिंक अरे लोग मेरे बारे में, क्योंकि आपके बारे में सब अच्छे बातें तो नहीं करेंगे, आई गेस सदगुरु के बारे में भी सब अच्छे बातें नहीं करते, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यू आर नो स्पेशल। इफ यू, इनफैक्ट आपको अच्छा लगना चाहिए। इफ यू आर डूइंग समथिंग रियली बिग एंड गुड, people will talk about you. And if you are not leading an average life, you know, then वही सेम घर में घर की बात हो जाती है। पर अगर आप कुछ अलग करोगे, लोग आपके बारे में बोलेंगे, पर इन बातों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। अपने लक्ष्य में ये चीज बहुत, मैंने, हाँ, हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली वुमेन्स एंड मेल्स का ये एक चीज है कि हाँ, आदमी काम करे तो भाई वो घर का रोटी, मैंने पैसा, उसका पैसा चलेगा, घर चलेगा, उसका रोटी आएगी। पर औरत कर रही है तो मैंने पता नहीं क्या कर रही है, 7 बज गए, पता नहीं क्या ही काम कर रही है। ये जो टोनालिटी है, ये सब अभी भी है। लोग अभी भी एडवांस, मैंने पढ़ाई, अभी भी पीपल आर, यू नो, वुमेन्स आर, दे आर गेटिंग एजुकेशन एंड थिंग्स आर, यू नो, एडवांस हो रहा है काफी। बट स्टिल देयर इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल। कुछ विलेजेस में चले जाओ तो अभी भी वैसा ही सेम, मैंने वही माइंडसेट है। पर इवन इन सिटी इट इज देयर। तो हमें हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। आज मेरी बेटी, हम लोग के मारवाड़ी में बेटा होने से बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। I made sure I do the same rituals for my daughter so that my daughter never feels कि मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए ये सब चीजें नहीं हुआ, अगर मेरा भाई होता तो उसके लिए सब हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है। तो we made sure both of us कि जो एक बेटा के लिए होता है वो सारे रिचुअल्स हमने हमारी बेटी के लिए किया, ताकि उसको ये, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन शुरू भी होता है हमारे घर पे। We give always a priority to kids। अच्छा, बेटा करे, लड़की सैक्रिफाइस करे, बेटा है उसको तो घर चलाना, उसको तो कमाना है, लड़की तो ब्याह करके चली जाएगी। ये जो सोच है ये शुरू होता है घर से। तो हमें एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम नाउ ऑन, हमारे मैंने जितना भी पॉसिबल हो। एंड सोसाइटी की जहाँ बात है, सोसाइटी तो बात करेगी भाई, वो उनका काम है, वो उनको उनका काम करने दो। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको अपने लक्ष्य को, कि मेरा गोल क्या है लाइफ में, उस पे ध्यान देके आगे बढ़ते रहो। एंड लेट द पीपल टॉक, दैट्स व्हाट देयर वर्क इज।
बिल्कुल, मुझे लगता है, मुझे आपका ये थॉट बहुत अच्छा लगा, वेयर यू सेड दैट शुरुआत घर से ही होती है। एंड आई थिंक ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं चैनल के लिए भी एक शुरुआत है, ताकि लोग स्टोरी सुने, लोग जाने, इसके बारे में बात करें, डिस्कस करें, और अवेयर हूं कि हमें कैसे चीजें चेंज करने की जरूरत है। तो बिल्कुल मैं भी ये मानती हूँ कि शुरुआत घर से ही होती है। आप जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करोगे, सेम एक्सपेक्टेशंस वो बड़े होके रखेंगे। सिमिलरली मेरे भी बड़े होते टाइम मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे और मेरे ब्रदर में कभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। मैं बड़ी थी तो हमेशा मुझे ये फील कराया गया कि मैं बड़ी हूँ तो मेरे बड़े होने के क्या राइट्स हैं। अगर मेरा भाई बड़ा होता तो आई एम श्योर वो उसको एज अ एल्डर ट्रीट करते। तो एज अ यंगर child, not as a younger daughter, but मुझे upbringing मिली as a younger as a elder child। तो मुझे लगता है ये awareness spread करना बहुत important है। So that is the example your parents set for you। अगर यहीं पे अगर वो discrimination कर देते दोनों के बीच में, तब आपको लगता कि ये घर से शुरू हो गया, and how it is। मेरी एक्सपेक्टेशन वही होती है, और जब आगे बढ़ के शादी होती तो मुझे पता होता कि मेरे पेरेंट्स ने ये सेट किया कि मुझे ऐसे परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू आर बोर्न। या इट्स अ साइकिल। या राइट। और अभी तक हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाली हूँ थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, और थोड़ा स्पाइसी गॉसिप भी हो सकती है सबके लिए। बट स्पेशली इंडिया में ऐसा होता है कि रिश्तेदार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन लीडिंग योर लाइफ। हम कुछ भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, उनसे पूछें या हम ना पूछें, उनका काम है सजेशन देना। और ये बहुत सारे घरों में आई एम श्योर आज भी होता है। लॉट ऑफ रिलेटिव्स आर वेरी सपोर्टिव, लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझ के आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस जनरेशन से वो आते हैं वो बहुत क्लोज नेट फैमिली से आते हैं। तो कई बार रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, चीजों को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनकी सुनते भी हैं, वो हमें सपोर्ट करते चलते हैं। बट एट द सेम टाइम जो चीज हम आगे लेके जाना चाहते हैं उसका कहीं ना कहीं इफ आई से बियरिंग द ब्रंट वो हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं, बिकॉज रिश्तेदार कॉल तो उन्हीं को करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कभी आया है बोथ योर फैमिलीज, आपकी पेरेंटल फैमिली, आपके इन लॉज, कभी रिश्तेदारों ने पिन पॉइंट करने की कोशिश की, और उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? Yeah, it happens a lot in my in-law. In fact, अभी भी होता है। I won't say it doesn't happen, but I would say कि सुनो, जब वो लोग बोल रहे, you can't argue with them because वो बोलेंगे कि हाँ भाई रिश्तेदार है, बड़े हैं, सुनना पड़ेगा। वो भी एक कैलकुलेशन आता है, भाई बड़े हैं, बड़े भले वो गलत हो पर क्योंकि वो बड़े हैं उनका सुनना पड़ेगा। तो ये भी एक गलत चीज है। जो भी है, कहने का मतलब है कि इफ पीपल आर गिविंग यू सजेशंस व्हेन इट इज अ फैमिली एंड रिश्तेदार होते हैं, तो यू हैव टू लिसन टू देम। यू कांट आर्ग्यू कि नहीं हम तो सुनेंगे नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। यू कांट डू, देन फिर वो हो जाएगा कि भाई रिवोल्ट कर रही है। पर करने का हो तब आप अपना ही करो, सुनो सबका पर करो अपना। पीपल विल, नो मैटर यू आस्क और नॉट, दे विल कम एंड गिव यू सजेशंस कि भाई ऐसा है वैसा है, पर अल्टीमेटली करना आप ही को है, एंड करना ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर प्लानिंग करोगे ये करना है वो करना है, हाँ प्रॉब्लम्स आ भी रही है तो आप सोचोगे अरे मैं कैसे करूंगी। मैं आज भी, मेरे इतना सालों से मैं फिटनेस में हूँ, इतने सालों से बिजनेस में हूँ, but still today I face difficulty. At times I go crazy because multitasking is again another role of most of the women's. So but I get crazy at times, but then again I try to calm myself, I do some meditation, and then I get back to again track कि भाई ठीक है, it's okay, it's part of life and now just do it. Right. तो मतलब सुनो, रिस्पेक्ट करो पर करो खुद की। हाँ, करो खुद की। Right. You can't argue with them. Right. And I'm sure that आपने जितनी भी चीजें यूज की हैं या जितनी भी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, कहीं ना कहीं वो आपकी बिजनेस ग्रोथ में भी आपको सपोर्ट करती है। और जैसे आपको पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं या करियर को बैलेंस करने में चैलेंजेस आ रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स आपको बिजनेस में भी आए होंगे। तो विड यू वांट टू शेयर कि आपको बिजनेस में कैसे रोड ब्लॉक्स आए और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? Yeah, so basically when I started like being an interior designer and when doing business, that also we started from scratch.
बट दैट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हम लोग दोनों मिलके काम कर रहे थे, वी वर डूइंग थिंग्स टुगेदर। ओके, तो मेरे से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस था, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। बट देन व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं अब मैं फिटनेस में अपना करियर बनाऊंगी, इसमें मैं स्टार्ट करूंगी, तो इट वाज टोटली समथिंग आई हैड नो क्लू वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। एंड देयर वर लॉट ऑफ, मैंने एक होता है ना आपको कुछ आइडिया नहीं है, जीरो, और एक होता है आप माइनस में हो। तो फिटनेस मेरा जब बिजनेस मैंने सोचा कि इस पे मैं वर्क करूंगी, तो गूगल में ना यू विल फाइंड लॉट ऑफ आइडियाज एंड यू गो क्रेजी, यू फाइंड कंफ्यूजिंग कि मैंने कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट लाइक फिटनेस को लेके व्हेन आई ट्राइड, बिकॉज आई वाज डूइंग ऑल अलोन एंड माय हस्बैंड वाज इनिशियली वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ऑफ कोर्स आई लेफ्ट अ रनिंग बिजनेस इंटीरियर का छोड़ के मैं फिटनेस में जा रही थी, तो उनको ऑब्वियसली वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त। तो मेरे को स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुआ बिकॉज मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ साथ मैंने क्लाइंट्स मैंने नहीं लिया स्टार्टिंग में, मैंने जिम में जॉब नहीं किया, तो मैंने पहले अपना नॉलेज पे फोकस किया। देन आफ्टर आई गॉट नॉलेज आई ट्राई टू गेट सम क्लाइंट्स। सो इनिशियली इट वाज रियली डिफिकल्ट, आई वोंट lie, because I was not part of any gym or anything. But after that, I mean, still I got some good references, I did good work, so I got clients. Offline मेरे अच्छा चल रहा था, I opened my own studio here in Calcutta. But then the challenge came when everything was starting to go online, and it happened much more before COVID. Okay, COVID से बहुत पहले जब लगा कि नहीं अब मार्केटिंग करना पड़ेगा, खुद को डिजिटली खुद को लाना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग अ चैलेंज। आई वुड से 2-3 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा आई हैव tried to put myself up in the online thing and with website and things like that, but still a lot more work to do. This online thing I'm still struggling, I won't lie. No, but I feel that, since we are a part of a mastermind together, I know you're doing very well. You've also got some, amazing achievements in the past 2 months. And I know, जैसे आपने बोला, it's just the starting. धीरे धीरे आगे जाते जाते I'm sure you will see the achievement, you'll see the successes, because आपने खुद ही बोला never give up, करते रहो. So I am sure. I got one मैं वो I Filmfare Awards में मैं गई थी by one of my client. I was invited there. I went. तो I have some कुछ celebrity clients भी है, and तो मैंने काम किया है अच्छे लोगों के साथ में. But yeah, this mastermind thing what you told, yes, I'm looking forward to learn more. I mean, because I think मैंने अपने level वो scale वो level को थोड़ा सा ऊंचाई set किया अपने लिए, so that थोड़ा सा difficulty हो सकता है, but yeah, with time I'll reach there. Right. और हमारा एक ही गोल है, like you mentioned, become above average. Yes. Right. Thank you so much इतने सारे insights share करने के लिए. But I would definitely want to know कि आज जितनी भी लड़कियां शायद हमें सुन रही हैं, they might be married, they might not be married, पर अगर अभी वो शादी करने वाली हैं, तो आपके लिए उनके लिए आपका क्या सजेशन है? उनको कैसे बेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए अगर वो शादी के बाद अपना करियर और अपनी फैमिली दोनों बैलेंस करना चाहती हैं? एक तो वन हु इज लाइक अभी सोच रहे शादी करेंगे, या शादी का बातचीत चल रहा है, या शादी रिसेंटली हुआ है, जिनका हो चुका है, वो तो अभी मैंने उतना खास प्लानिंग नहीं कर सकते, पर अभी मैंने समझाना पड़ेगा जो भी है, उनको चैलेंजेस थोड़ा ज्यादा फेस करना पड़ेगा क्योंकि शादी हो चुकी है, बताया नहीं है। पर जिनकी शादी नहीं हुई है एंड दे आर प्लानिंग, दे शुड टेल देयर हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड, कि भाई हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, लाइक आप जो भी करेंगे साथ में हम भी कुछ करेंगे, चाहे आप मेरे को अपने काम में इन्वॉल्व करो। You can start this way if your husband is not supporting you. Let's say कि बोले नहीं आप क्या काम करना है, you can start this way क्योंकि आप अपने काम में मुझे इन्वॉल्व कर लो, या ऐसा कुछ करो. This is how I did. Because मेरे को भी इनिशियली ऐसे परमिशन नहीं मिल गया था, हाँ भाई बिजनेस करो and all those things. So this is how you can start, but tell your heart, ये मत करो कि अपनी इच्छाओं को मारो मत, क्योंकि आप अगर अपनी इच्छा को मारोगे, सोचो आपकी बेटी होगी और आपकी बेटी भी अगर करना चाहेगी, क्या तब आप ऐसे करने देखो, तब आप चाहोगे नहीं भाई मेरी बेटी है, मेरे उसको जो चाहिए उसको सब मिलना चाहिए। तो आप अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आप अपनी बेटी के लिए कैसे स्टैंड लोगे? मैं तो सिर्फ यही मैंने बोल सकती हूँ, दैट इज बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट माई सेल्फ, बिकॉज आई फेल्ट इफ आई कांट टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, जब मेरी बेटी बड़ी होगी, उसको कुछ चाहिए होगा या उसको कुछ करना होगा, तब तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं खुद स्ट्रांग नहीं हूँ। तो मेक श्योर, चाहे आप 1 रुपया कमाओ, 10,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, पर मेक श्योर टू कीप योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेल योर थिंग्स, टेल योर हार्ट आउट कि मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी काम हो। आप घर से भी कर सकते हो, आजकल अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कितने सारे फैशन, इंटीरियर, एंड देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन राइट आर्टिकल्स एंड सो व्हाट नॉट।
but take a stand for yourself and do something. Women are not meant for just having children and cooking food and washing clothes. सिर्फ ये सब के लिए नहीं है. हम इन चीजों को करते हुए भी we can do something in our career, and that मतलब आप जब कुछ काम करते हो ना, you feel good from inside कि भाई चले 1000 रुपए सही, पर ये मैंने अपने मेहनत से कमाया है और मेरे हस्बैंड से नहीं लिया है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वो कॉन्फिडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई हैव अ सीट एट द टेबल. वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. और चाहे आप थोड़ा सा करो या आपके ड्रीम्स कितने भी बड़े हैं, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, जिसको भी अपने लिए जैसा भी सोचना हो, बट एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस हो कि आई हैव अ से, आई कैन पुट इन 50% whenever there is a decision in the family. Yeah. Right. Thank you so much. I think it was beautiful discussing, knowing your story, and I'm sure जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और इस वीडियो को देखेंगे वो बहुत कुछ सीखेंगे. And I request everyone to implement these strategies to have some confidence of doing something for their life. Thank you so much, Simran. Pleasure, Manvi. Thank you so much. Thank you so much.